Hi guys, fantastic. We at the Delhi in the global rally. So we had a fantastic day and I have somebody very special today. This guy is very talented and outstanding and he's performed wonders with Forever, especially uh, doing his business, and he's a youngster which is very important. Before that, let me introduce him, Manik Agarwal. Thank you so much, sir. I think I pronounced your name right, Yes, Manik, sir. right? Yeah. So as you know, my I keep on pronouncing A to B and B to Z. So Manik, I think you've done fantastically well, and it's been amazing to know your success. And how old are you, sir? I'm just 20 years old. Oh, just 20 years. And if I'm not mistaken, I just heard that your last month's check was about 6 lakhs. Yes, sir. 6,15,000, in which 24,000 was the tax which I was deducted. Wow. Guys, can you imagine a guy who's 20 years old gets 6 lakh rupees a month? And guys, forget it, in Corona time. This is unbelievable, guys. So, Manik, first of all, it's amazing and it's very happy to see such a talented person, especially at this age. You're doing wonders. So, Thank you so much, Manik, sir. can you just tell us a little bit? I'll have a lot of questions to ask you, Yes, sir. and I'm sure you, with your knowledge and body language, I'm sure you'll give fantastic answers. But tell me, in these tough times where 99% of businesses are just losing money and they're crying, and you made 6.5 lakhs, and there's hardly any investment. I'm sure you don't have office, you don't have staff, you don't have any My overheads. just office is this smartphone. Okay. That's my just office. I'm doing everything online through my smartphone, through my Instagram, and it's all about the smart work plus hard work. Okay. So it's a combination of hard work and Hard work as well. yeah. But tell me one thing. What okay, if you can tell us something like before what you wanted to become. What was your you can say sapna, your dream before Forever? What were you wanted to become? मतलब बचपन से पेरेंट्स का जो मेन ड्रीम था वो था एनडीए. ओके, एंड इवन आई वाज आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए, गो टू इंडियन एयरफोर्स. और पायलट बनने का बहुत बड़ा ड्रीम था कि पायलट बनना है. एंड इवन आई हैव बीन क्वालिफाइड फ्रॉम सैनिक स्कूल कपूरथला, विच इज़ द फाइनेस्ट स्कूल इन इंडिया. तो ये था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट ये नहीं समझ रहा था करें क्या. So basically, you wanted to be a Air Force fighter pilot. या Wow, fantastic. So, what made you shift from that dream to a thing where people say chichi, network marketing? What made you shift Yeah. from there to here? ड्रीम्स, पावर ऑफ ड्रीम्स. जब मुझे ये प्लान बिजनेस के बारे में बताया गया तो मेरे को लगा कि यार जो चीज़ मान तुझे 24-25 साल की एज में मिलेगी, यू कैन हैव दैट एट द एज ऑफ 19. 19 साल की एज में वो चीज़ पा सकता है. तेरे अंदर वो जुनून है, तेरे अंदर वो आ गया. क्योंकि यूथ को चाहिए एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर. और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें यंग एज के अंदर कुछ मिल जाए, क्योंकि देखो इस एज में यही होता है बचपन में, है ना, पापा 10 रुपये देना, पापा 20 रुपये देना. तो तीसरे दिन पापा भी बोलते थे को कल तो दिया था. तो मेरे अंदर भी वही था कि यार कब तक पापा के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खुद का कुछ करते हैं. और फिर बोलते मेरे को ड्रेस लेना है, मेरे को ये Yeah, लेना है, yeah. कपड़ा लेना है, नाइट शूज लेना है. क्योंकि और, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं. और फिर कल गर्लफ्रेंड को भी संभालने का, तो उसका भी खर्चा उसका भी चालू हो खर्चा. जाता है. तो एनीवे, इट्स रियली नाइस टू नो दैट. सो फॉरएवर में आपको क्या अट्रैक्शन हुआ? मतलब आप इस बिजनेस को, जो बहुत जन अट्रैक्ट नहीं होते, स्पेशली द सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, तो आप ये बिजनेस में अट्रैक्ट कैसे हुए? सर मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे मेरे अंदर, मेरे को बचपन से ना पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को गाइड करने में बहुत मज़ा आता था. मेरे को होता था कि हज़ारों लोग मुझे सुने, ठीक है. तो जब मैं इस बिज़नेस में आया मुझे लगा कि यार मानिक, तेरे अंदर वो स्किल है गाइड करने की, पब्लिक स्पीकिंग की तेरे अंदर स्किल्स है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी है. बिकॉज ऑलरेडी मैं स्कूल टाइम में डेक्लेमेशंस करता था, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था. तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तेरा कुछ बन सकता है. बट टू बी वेरी फ्रैंक सर, कोई भी काम स्टार्ट करे प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं. एंड माई फर्स्ट चैलेंज वाज माई फादर. ओह, My first challenge was totally, my family was totally against me because they were not sure about this business. They already thought that this is all gonna be fake, everything will be fraud, and you will go in totally loss. But my why was clear. Simple thing was, I saw the business, my father does not saw. I saw the seminar, my father. So I simply said my father कि मैंने business देखा है, मुझे करने दो, give me some time. And he was like कि तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा. बहुत सारे डायलॉग्स मिलते थे, काफ़ी कुछ सुनने को मिलता था. इनफैक्ट मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल भी दिया था. ओह, इनफैक्ट अगर मैं अपनी स्ट्रगल पीरियड की बात करूँ तो मैं इस बिज़नेस में जब आया तो मेरे को घर वालों ने इतना मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया. ओके, इनफैक्ट मेरा फ़ोन भी मेरे से ले लिया था घर वालों ने कि ये पागल हो गया.
ओके एंड एक चीज़ बोलते होते कहते पागलों ने ही इतिहास रचा है। तो मैं था कि चल कोई बात नहीं मानिक, तू पागल है, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कभी ना कभी तो होगा। आई कीप ऑन वर्किंग, आई कीप ऑन वर्किंग। इवन माई पेरेंट्स किक्ड मी आउट फ्रॉम द हाउस एंड आई स्ट्रगल्ड इन गुरुद्वारास इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के मैं गुरुद्वारों के अंदर मैंने स्ट्रगल किया। एक रोटी खाने के लिए भी ना मतलब बर्तन भी साफ़ करने पड़ते थे, ऐसा टाइम भी मैंने निकाला। तो 6 मंथ्स मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बिज़नेस के अंदर, बट काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा था? बिकॉज जहाँ मैं मेहनत कर रहा था वहाँ पे शायद मेरे लिए वो जगह बनी नहीं। बिकॉज मैं लोगों को घर घर जाके बता रहा हूँ, है ना, रोड्स पे बता रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ होती थी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी शर्म भी हो जाती थी समझाने में। तो मैंने वही चीज़ अब आफ्टर 1 ईयर जब मेरा कुछ नहीं हुआ 1 ईयर के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना मानी जो तू काम ऑफलाइन कर रहा है थोड़ा सा उसे अगर हम ऑनलाइन शिफ्ट करें, अगर हम उसे लैपटॉप के थ्रू वर्क करें, स्मार्टफोन के थ्रू वर्क करें, तो कुछ हो सकता है। एंड स्लोली मैंने लर्निंग पे फोकस किया, अपनी बहुत ज़्यादा लर्निंग पे फोकस किया, पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया एंड पब्लिक स्पीकिंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे मैंने वर्क किया। एंड स्लोली मैंने वेबिनार्स लगाने शुरू किए एंड इट वाज द टफेस्ट टाइम जब 2019 के अंदर मैंने वेबिनार स्टार्ट किए। एंड यू वॉन्ट बिलीव सर, ओनली हार्डली 5 to 10 पीपल कम एंड जॉइन द वेबिनार। ओनली 5 to 10 पीपल वर देयर इन द वेबिनार, और उसमें से भी 2-3% तो मेरी खुद की टीम के थे। तो इमेजिन करके देखो कि एक वेबिनार मैं लगा रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ 5-6 लोग, 10 लोग, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आती थी। बट मैं कहता था कोई बात नहीं, होगा कभी ना कभी तो होगा। एंड वही चीज़ आज भी वेबिनार्स लगते हैं तो सीट्स फुल हो जाती हैं, 3-3 हज़ार का भी पैक ले चुके हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मतलब टाइम की बात होती है। मेरे को मेन चीज़ जो अट्रैक्ट करी इस बिज़नेस में मेरे को था कि कार्स, क्योंकि यूथ का ही होता है, गाड़ियाँ, है ना, बढ़िया, और सबसे बड़ा यूथ का होता है कि इस एज में ना मतलब लाइफ सेट हो जाए। तो मुझे भी यही था कि यार 40 साल काम करने से अच्छा है 4 साल मेहनत कर लेते हैं। एंड अभी तो हुए मुझे 2 से 3 साल हैं कि अभी तो जस्ट आई एम ए चाइल्ड इन दिस बिजनेस। वाह फैंटास्टिक। एक चीज़ मेरे को ये है कि आपने बोला गुरुद्वारा में काम किया, आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग, क्योंकि वहाँ से जो आपको जो ब्लेसिंग मिला है वो बहुत नेचुरल मिलता है। कभी कभी कोई चीज़ नेचुरल मिलता है, कोई अननेचुरल मिलता है, बट ये आपको एकदम नेचुरल ब्लेसिंग मिला है। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, आई वाज हैविंग ए जियो फोन, ओके, मतलब 1500 रुपये का जो इंडिया का जियो फ़ोन आता है, मेरे पास वो फ़ोन होता था। एंड वट एवर द टाइम वॉज गोइंग आई यूज टू रिकॉर्ड इट। माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, वेन एवर दे कम होम दे यूज टू से दैट इट इज़ अ फ्रॉड, इट इज़ दैट, इट इज आपका बच्चा तो 12th में आपका बच्चा तो 12th में फेल हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं बनना। एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ कि इनका मुँह बंद करना है एंड दैट थिंग मोटिवेट्स मी। और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने फ़ोन ऐसे पॉकेट में डालना, ठीक है, जैसे राइट नाउ, जैसे अब फॉर एग्जांपल तो मैंने ऐसे रखना एंड मैंने कहा बोल लो और बोल लो। एंड दैट थिंग टुडे आई शो इन माय वेबिनार्स कि जिस टाइम मैं एएस लेवल पे था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ओके, जब मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू रिकॉर्ड कि कभी ना कभी जब बनूंगा यही वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा। एंड दैट पीपल टुडे, आज की डेट में बात करें, वो पता क्या बोलते हैं, मानिक हमारे बच्चों को भी बता, मानिक हमारा ना ये राहुल है, इससे भी थोड़ा ना गाइड किया कर, ये भी तेरी तरह बनना चाहता है। और एक टाइम ऐसा था, उसको बोल दिया था कि तू हमारे बच्चों से ना तू दूर रहेगा। इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम, राइट, वेरी लोग राइट। गिरगिट की तरह मतलब कहते रंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों ने तब भी बोलना है जब हमारे पास कुछ नहीं है, लोगों ने तब भी बोलना है जब हमारे पास बहुत कुछ है, राइट। अब मैं हिमालयस में जाके झंडा भी लगाऊंगा ना, लोगों ने ये बोलना है अरे देखो पागल कहाँ जा गए, काम धंधा नहीं है उसके पास, है ना, वो देखो कोई काम धंधा नहीं, उधर जाके कोई चीज़ है। इट मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई कि मैं हिमालयस में जाके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आया फॉर एग्जांपल, है ना। और लोगों ने कहा नेटफ्लिक्स देखता रेस्ट बढ़िया। तो पीपल विल ऑलवेज से एवरीथिंग, मेरे को बोलते थे लोग, एंड दैट थिंग मोटिवेट्स मी कि इनको बन के दिखाना है, कोई इशू नहीं। टाइम लगा, स्ट्रगल हुआ, 1-1.5 साल तक सुपरवाइजर भी नहीं हुआ मेरा। लाइक मेरे जो पिताजी है ना, मेरे को नालायक मुल्का बोलते थे, ओके, मेरे पिताजी, तो मेरे को उनको प्रूफ करने का था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, फिर बात है। सो दैट वाज, मेरे 4-5 सवाल है आपके लिए। फर्स्ट, आप जो फॉरएवर ज्वाइन किया, फर्स्ट आपका फर्स्ट चेक कितना था? सर हंसी आएगी थोड़ी। नहीं, हंसी तो चाहिए ना, बिकॉज व्हेन वी से रैज टू रिचेस, एंड इट वाज जस्ट 308 रुपीज़। एंड जब वो चेक घर पे आया, माय फादर पिक द सैंडल, मतलब चप्पल उठाई और सीधा उठा के मारी मेरे कि 300 रुपये तो कमा रहा है इस बिज़नेस में, 500 तू मेरे से ले लिया कर, इतनी तूने बिजली फूंकी, है ना, इतना तूने ट्रैवल पे लगाया, 300 रुपये आया। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा,
आज 300 आया, आने वाले टाइम में 3000 भी आएगा, आने वाले टाइम में 3 लाख भी आएगा, आने वाले टाइम में 3 करोड़ भी आएगा। और जब करोड़ पे पहुंचा ना मैं, ही वाज लाइक हैंग, ये पागल हो गया, इसे तो आगरा में भर्ती कराओ इसे तो आगरा में भर्ती कराओ। तो मैंने, मेरी वाई क्लियर थी, सबसे बड़ी बात क्रिस्टल क्लियर। आपका जो पहला चेक 300 रुपए का था, 308 रुपए का, 0.26 पैसे, वो पूरा मुझे याद एक है। महीने का, पूरा एक महीने का इनकम आपका 300 का। तो एक चीज़ बताओ, आपको चैलेंजेस जो फेस करे, मतलब आप उस टाइम पे तो आपको इतना 6 लाख 6.5 लाख का चेक नहीं मिलता था, तो उस टाइम पे आप जब किसको अप्रोच करते थे बिजनेस के लिए, तो चैलेंजेस क्या फेस करने थे आप? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कहीं ना लोग मेरे को देख के पता क्या बोलते थे, तूने क्या कमाया, तेरे पास क्या है, ठीक है जी। मतलब पीपल वर लाइक कि पहले तू अपनी अचीवमेंट दिखा, कौन सी गाड़ी तेरे पास, कौन सा ये है, क्या ये है। तो जस्ट फेस देख के, एंड एक बात बोलते, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो वही चीज़ थी कि वो मुझे देख के जज कर लेता है कि यार छोड़, टाइम पास है, ये है वो है। तो मेरे को एक चीज़ होती थी, मैं सभी को बोलना चाहूँगा, जब भी मुझे कोई नो बोलता था, मैंने उस नो को कभी भी नो में नहीं लिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको कोई नो बोलता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। राइट। No means next opportunity. If someone is saying no, he is not saying no to me. He is saying no to himself because मेरे पास तो फिर opportunity है। मैं आज नहीं तो कल कामयाब हो जाऊंगा, मैं हुआ भी, उसके पास क्या है? मेरे पास तो फिर वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरे को कोई नो बोला है ना, मैं उनको गॉड ब्लेस बोलता हूँ। तो मेरी जो मेंबर्स हैं बोलते हैं, सर वी हैव जॉइंड योर टीम, मैं हमारे टीम, आपकी टीम में हूँ, और हमको आपने कभी गॉड ब्लेस नहीं बोला, लेकिन जो आपकी टीम ज्वाइन नहीं करते उनको वो गॉड ब्लेस बोला। मैं बोलता नहीं, उनको इसलिए गॉड ब्लेस बोलता हूँ, उनको ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तुम लोग तो मेरी टीम में है, तुम लोग ऐसे ही ब्लेस्ड हो। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी फैंटास्टिक नॉलेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम मिस्टर अग्रवाल। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब नेटवर्किंग, जैसे बोलते हैं नेटवर्क चेन, ये तो चेन बिजनेस है, तो उसका कैसा जवाब देते हैं? नो इशू, सबकी सर यही चीज़ होती है। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ क्या होता है वो। If someone say it's network marketing, I say what is Especially what is network marketing? they say it is the वो चेन टाइप का बनाने का धंधा है हाँ जी। ना, तो उसके आप I ask that person कि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, please tell me in your words what is it, and that person is not having the proper information, he is just having the सुनी सुनाई बातें हैं ना, नॉलेज लाइक वो अच्छा वो होता है, एंड देन मैं पहले उसका सुनता हूँ, उसने बोला ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, एंड आफ्टर दैट मैं आई देन टेल मेन थिंग इज़ कि हम अगर अगले पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, टुडे अगर मैं बात करूँ तो मैं वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस लेवल पे, तो पीपल कनेक्ट, पीपल डज नॉट कनेक्ट टू द कंपनी, पीपल फर्स्ट सी यू, राइट, what kind of person you are, what kind of value you are providing. And if you are providing a good vibes to your team, if you are always confident and if you are totally self-motivated, there are two types of people. One is the people who is having motivation from the other people. Like आज मैंने उसकी स्पीच सुनी, मैं मोटिवेट हो गया, आज तो मैं ये कर दूंगा, आज तो मैं 10 CC कर दूंगा, बराबर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट का वो गुब्बारा फूला, बाहर गए, लोगों ने दूर से पिन मारनी, एंड आई विल बी लाइक राइट। हाँ, एक होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ कभी होगा, बट एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, मैंने हमेशा सेल्फ मोटिवेशन रखी। तो नेगेटिविटी अगर कोई कुछ बोलता है, नो इशू, इतना बड़ा देश है, इतने सारे दुनिया है और पॉपुलेशन के लिए हम लोग इतनी फेमस है। population तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेनेवर यू गो एंड अप्रोच और यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट, तो एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, ये आपके प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके आप उसका आंसर आप कैसे करते हैं? कि जब कोई आपको बोलता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो रामदेव बाबा का प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, मार्केट में एप्पल भी बिकता है, माइक्रोमैक्स भी बिकता है, बराबर। सिंपली आस्क दैट पर्सन, इफ आई गिव यू अपॉर्चुनिटी to have your career in Apple, will you choose Apple? Or if I give you same question, you are having the opportunity to get your career in Micromax, आप कहाँ करियर लगाना चाहोगे? And that people, I will definitely choose Apple. Why I will choose Apple? I ask him why. He says good status symbol है, फीचर्स अच्छे हैं। मैंने कहा वो तो 1.5 लाख का है, सेम फीचर तो एंड्रॉइड भी दे रहा है, तू वो ले ले। एंड ही इज लाइक नहीं नहीं, फिर मैंने कहा फॉरएवर इज एप्पल, फॉरएवर इज रोल्स रॉयस, फॉरएवर इज नॉट ए सिंपल, है ना, कोई नैनो वाली कंपनी नहीं है, इट्स लाइक ए रोल्स रॉयस। जहाँ पे रोल्स रॉयस की बात करें, एक बिकती होगी, नैनो जैसी पता नहीं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती होंगी, तो जाके एक रोल्स रॉयस।
बराबर. बट दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया तो पुअर कंट्री है, किसी के पैसे नहीं है, और अभी तो कोरोना है, पब्लिक तो और मर रहे, तो हाँ इन लोग अफोर्ड करके It's not आपका worth it. एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेंगे. मतलब ये भी सवाल शायद आता होगा आपको. बिल्कुल आता है. सिंपल थिंग इज, मैं एक डायलॉग बोलता होता हूँ, लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है. एंड सिंपली लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है. एंड सेम थिंग इज़ कि सर हमारी टीम में कई लोग ऐसे भी हैं, कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जो झुग्गी झोंपड़ी से उठ के उन्होंने 2CC डन किया. कई लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशंस मतलब जॉब कर करके अपना लेवल डन किया है. तो ऐसे तो वो भी एक्सक्यूजेस दे सकते हैं. सिंपल थिंग इज, एक्सक्यूजेस डोंट बिल्ड एम्पायर. कोई ऐसा बोलता है पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सिंपल थिंग इज, ही इज गिविंग एक्सक्यूजेस एंड आई सिंपल गिव देम द क्लैरिटी. अगर करना चाहते हो, स्ट्रगल ही नहीं करोगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करोगे, तो हाउ कैन यू से दैट आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल. इतिहास गवाह है, कोई भी हिस्ट्री में आप कोई भी स्टोरी निकाल लो, कोई भी बड़े से बड़ी लड़ाई निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, विदाउट स्ट्रगल किसी की भी स्टोरी नहीं बनी. इनफैक्ट सर आपकी भी स्टोरी अगर बात करें, विदाउट स्ट्रगल आज आपकी राइट. स्ट्रगल तो आपने भी किया है ना, दैट्स वाई यू आर रॉकिंग, आपका एक नाम है. सेम वे अगर वो स्ट्रगल ही नहीं कर रहा पर्सन, 2CC के लिए नहीं स्ट्रगल कर रहा. और सबसे बड़ी बात, आई आस्क हिम ए सिंपल क्वेश्चन, आज 2CC महंगा लग रहा है, माइंडसेट है, सस्ते वाले को सस्ता लगता है, महंगे वाले को महंगा लगता है. Right. आज 2CC महंगा लग रहा है, 6 महीने बाद भी महंगा लगेगा, यस या नो? Right. यस. 6 साल बाद भी महंगा लगेगा. एंड आई सिंपली से, आज जैसे 2CC अफोर्ड नहीं हो रहा और तो सपने ले रहा है लाखों के. बराबर. हाउ कैन यू टेक द ड्रीम ऑफ 1 lakh if you're not able to only imagine 2CC? No, plus forever के बीच में no investment, no office, no staff, no light, no electricity, no fax The bill. main thing is we are getting American opportunity at our home. And that आज too लोग- American income. अमेरिकन इनकम, लोग आज लाखों करोड़ों रुपए लगा के अमेरिका जाके बिजनेस कर रहे हैं. और आज इस बिजनेस में इतनी पावर है कि दिस जस्ट वी नीड ए गुड स्मार्टफोन, वी नीड ए गुड इंटरनेट कनेक्शन. आज तो मतलब इतना बेस्ट हो चुका है हमारे पास कि मतलब हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बहुत बढ़िया बिजनेस कर अभी तो गवर्नमेंट खुद बोलती, गवर्नमेंट या themselves saying work from home, वर्क फ्रॉम होम. और हम लोग पहले से बोल रहे वर्क फ्रॉम या होम. दैट्स द थिंग. दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट. तो मेरा और एक सवाल है कि जो मैंने नोटिस किया है अभी फॉरएवर में, और मैं खुश भी होता हूँ कि यंगस्टर्स यस मतलब दे आर परफॉर्मिंग फैंटास्टिक कंपेयर टू द एल्डरली क्राउड. मतलब एल्डरली मतलब वो 30, 40, 50 अराउंड, और जो यंगस्टर्स है जो 18 साल, 20 साल, 21 ईयर्स, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर. व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट कि यंगस्टर्स गरम गरम कह सकते बट हैं, यंग ब्लड हो गया. हाँ. सेकेंड थिंग इज, यूथ के अंदर आज की डेट में बात की जाए, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. इंडिया में या कहीं की भी बात करें, यूथ में बहुत पोटेंशियल है. सिंपल द थिंग इज, दे आर नॉट गेटिंग ए गुड मेंटोर. उन्हें एक सही मेंटोर नहीं मिल रहा जो उन्हें गाइड कर सके. अब हमें कौन गाइड करता है ना, बेटा वो देख शर्मा जी की लड़की बीटेक कर रही है, तू भी बीटेक कर ले. चाचा जी आगे घर पे, बेटा PhD कर ले, बहुत स्कोप है. उसके बेटे का ना 10,000 की 20,000 की वहाँ पे सैलरी लगी थी, तू भी ये कर ले, तेरा भी ये बन जाएगा. उसने लाइक, फिर थर्ड आएगा पीयर प्रेशर. मेरे ना दोस्त ने वो की है, BCom रखी है, मैं भी BCom कर लेता हूँ. हमारे यूथ के अंदर कुछ पता ही नहीं चला करें क्या, वी आर नॉट गेटिंग कि करना क्या है. एंड अगर हम यूथ को सही डायरेक्शन दें, सबसे बड़ी बात यह है प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड है. दूसरी चीज़, इतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास, सबसे बड़ी अमेरिकन अपॉर्चुनिटी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ जब हम उन्हें गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपका कुछ बन सकता है. और सबसे बड़ी बात, नहीं भी इनकेस को ज्वाइन करते, इवन इफ दे आर कनेक्टेड विद द ट्रेनिंग सिस्टम, देन उनकी जो स्किल्स डेवलप होंगी, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, कल को जॉब या बिजनेस कुछ भी करें, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो जो स्किल्स उनके अंदर आएंगी वो उन्हें कितनी नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी, मेन थिंग. एंड उस चीज़ को लेके आज यूथ इज कनेक्टिंग डे बाई डे. Fantastic. I mean, I'm very happy to know kid. I would say kid because you're a kid in front of me. But at your age, इतना knowledge, इतना information, इतना setup जो देता है आजकल so called MBA, DMBA, टिम्बे वाले लोग तो अभी क्या बोलना नहीं चाहता हूँ. So it's amazing to get knowledge from such a fantastic And person. sir, one thing I want to, I'm a 12th dropout.
राइट नाउ मैंने, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया, आई वाज टोटली मैड कि मैंने मतलब थोड़ा स्टडी को साइड पे कर दिया। सर आप 12 ड्रॉप आउट, कांग्रेस, वेलकम। मेरा डिग्री है MACF, या ग्रेट, मतलब मैट्रिक अपियर्ड कॉपीड एंड फेल्ड, दैट्स द थिंग। MACF। क्योंकि एजुकेशन कोई फ़ायदा नहीं। देखो दो अपना फैमिली में दो फेमस पर्सनैलिटी थे, अंबानी, यस सर, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। यस सर, अनिल अंबानी ने सब यूके US ऑक्सफोर्ड में सब जाके नॉलेज सब स्टडी किया, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। और जो इतना नॉलेज नहीं लेकिन वर्कर लोग के साथ काम करता था, जो मुकेश था, उसका बिजनेस ऊपर हो गया। That's the वो था अंबानी से। बट सी द डिफरेंस, हु परफॉर्म एंड हु डिडंट परफॉर्म। विद ऑल द एजुकेशन कुछ फ़ायदा नहीं। एंड इन टुडेज वर्ल्ड जैसा एमरेट एयरवेज है, उन लोग ने 9000 स्टाफ निकाला। अदर एयरलाइंस मुझ स्टाफ, जेट एयरवेज रातों रात बंद हो गया, किंगफिशर, जेट एयरवेज, डेक्कन एयरवेज। so many years. So many- Security, there is no security in job, and our business is totally so much security. सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक सवाल है कि MLM में स्कैम बहुत होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो देखो, जो स्कैम करते हैं वो कभी सामने नहीं आएंगे। बराबर। फर्स्ट थिंग, वो कभी अपना कैमरा नहीं खोलेंगे। दे विल बी लाइक दो जोड़ आएंगे 2 करोड़। दे विल बी जस्ट लाइक कि हाँ जो जल्दी जल्दी। दे विल नॉट प्रोवाइड वैल्यू, दे विल नॉट प्रोवाइड नॉलेज, दे विल जस्ट लाइक पैसा निकाल लो और भागो। एंड वी आर लाइक फर्स्ट प्रोवाइड द वैल्यू, फर्स्ट क्रिएट अ बॉन्ड विद द पर्सन। पहले उसको समझाओ, पहले उसको सिखाओ। सर टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे खुद को इस बिज़नेस को समझने में 2 to 3 days लगे थे। एंड अगर मैं फर्स्ट डे पर्सन को बोल दूँ कि भाई आजा निकाल कितने हैं, थोड़ा तो ट्रस्ट इशू आएगा। बट अदर जो फेक होती हैं वो ये इस चीज़ पे करते हैं, पहले इतने मतलब बड़े बड़े सपने खा के सीधा पैसे निकाल, वो भी गलत चीज़ है। पहले क्लैरिटी होती है। अपने बिजनेस में क्या है, मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी प्रूव कर चुके हो और 175 कंट्रीज प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो स्कीम स्कैम होता होगा बाहर दुनिया में, बट अपना तो यहाँ पे टोटली क्रिस्टल क्लियर है। सो प्लस हम लोग हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में देते हैं। यू गेट अ बिल, यू गेट रिसीट। आप अगर एक पैसा भी खर्चा करेंगे कंपनी में, आपको सामने से रिसीट मिलता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ कोई बिल नहीं है। आर्थराइटिस 700, Yes, sir. डायबिटीज़ 200, फीवर है तो 100 रुपया, कुछ बिल है? कुछ नहीं है। मतलब जैसा आदमी वैसा पूरी। दैट्स यहाँ तो हर चीज़ का बिल है। और कोरोना के पहले और कोरोना के बाद रेट हमारा फॉरएवर का रेट सेम है। ऐसे नहीं कि कोरोना हो गया तो रेट बढ़ा दिया, या सैनिटाइजर का रेट जो पहले रेट था और अभी रेट है वो सेम है। Same है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर जैसी कंपनी तो लाइफ में सपने में भी नहीं मिल सकती। तो 100% है। मेरा और एक, सॉरी, मेरा आपका बहुत सवाल पूछने वाला आपको, No issue. क्योंकि आई एम रियली लविंग इट। yeah, because the knowledge that we are getting and all our distributors, lovely distributors are getting, not only from my team but all the team members all over. तो दूसरा सवाल है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ऐसे हैं जो अप्रोच करते हैं और उनका टीम बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 जन को ट्रेनिंग दिया, उसमें से एक सक्सेसफुल हुआ, जैसा उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रुप में ओनली 2 जन सक्सेसफुल, बाकी 8 सक्सेसफुल नहीं हुए, उसका क्या जवाब देंगे? सर मतलब जो 10 जन, आप समझ गए मेरा सवाल, 10 जन ने ज्वाइन किया, ओनली 2 जन सक्सेसफुल हुए। देखो सिंपल है, कहते हैं नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का नहीं। अब कहीं ना कहीं जो 2% है, शायद उन्होंने उनकी एक कहते हैं ना कि खाना खाने का तभी मज़ा है जब भूख लगी होती है, शायद उनकी भूख बड़ी होगी। कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। द मोमेंट वी ब्रेक आर कंसिस्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल आई एम कॉलिंग डेली 10 पीपल, ओके, आई एम डेली कॉलिंग न्यू पीपल, एंड द डे आई ब्रोक इट, यार कल कर लेंगे, कौन सा होगा, आई कैन ब्रेक द कंसिस्टेंसी, कल की कल आए ना, पता ना लगे, है ना, कल कल कल। सेकेंड थिंग इज अपने AS लेवल पर, अब कहीं होता है AS हो गया, AS के बाद सुपरवाइजर भी हो गया, पूरा स्ट्रगल किया, आपने नोट किया होगा, AS टू सुपरवाइजर फिर भी जल्दी निकलता है, कई बार सुपरवाइजर टू मैनेजर में टाइम निकल जाता है। बराबर। द मेन रीजन बिहाइंड इज दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। सुपरवाइजर आया, थोड़े से पैसे आने लग पड़े, भाई खुश हो गया, पैसे आ रहे हैं, एक बार आए, 2 बार आए, उसके बाद काम करना बंद। कंफर्ट जोन सिंपल है, जब तक काम है तब तक नाम है, जिस दिन काम खत्म नाम खत्म। और एक सवाल था कि बहुत जन, अभी मैं दूसरी कंपनी का नाम, अदर MLM कंपनीज में बहुत जन बोलते हैं हमारा कंपनी तुमसे अच्छा देता है, पैसा अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा बहुत ज़बरदस्त इनकम है,
ज़बरदस्त लड्डू, मतलब पैसा, लड्डू बिड्डू सब हमारी कंपनी ऐसी देती है वैसी देती है। तो मैं आपका फॉरएवर क्यों करूं जब दूसरी इतनी सो करोड़, मैं नाम नहीं ले रहा सब कंपनी का, आप समझ जाएंगे। Yes, sir, yes, Right? तो वो कंपनी तो इतना इतना लड्डू देती है और इतना आपको जस्ट ask them to sit in front of them, उन्हें अपने सामने बुलाओ, कम उनको बोलो चेयरमैन बोनस दिखाओ, ग्लोबल रैली दिखाओ, अपना पूरा प्रोफाइल प्रोडक्ट पूरा A to Z, मतलब पूरा सेटअप दिखाओ, कहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, किस वे से बन रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ओके। एंड ग्लोबल रैली जैसे एक भी रैली दिखाओ, जस्ट एक रैली भी दिखा दो। बस मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें, विथ माई लिटिल नॉलेज विच आई हैव, मैं तो उनको ये भी बोलता हूँ, चलो आपकी जो कंपनी पैसा देती है किस पे देती है, ओके, उन लोग जितनी भी कंपनी है ना, दे गिव कमीशन ऑन पॉइंट्स। पॉइंट्स, तो मतलब आपने 1 लाख का सेल किया, पॉइंट उसका पॉइंट वैल्यू होगा 50,000, तो 50,000 रुपये आपको कमीशन देती है। अमेजिंग। और हमारा फॉरएवर, आपने अगर डीपी प्राइस में भी एक प्रोडक्ट Yes. लिया से 1,195 रुपीज़, तो आपको कमीशन मिलता है 1,400 मतलब में। तो आप सोचो इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करो, वही चीज़ है ना। मतलब आपने सेल किया समझो 40,000 अपना 80,000 का, लेकिन आपको चेक मिला 1,20,000 का, 1,20,000 बिकॉज वी गिव कमीशन ऑन MRP माइनस टैक्स, जो दूसरी कोई कंपनी सपने में नहीं दे सकती। अरे नेटवर्किंग छोड़ो, इन एनी in बिजनेस। any business. So it's all about sir mindset. जितने भी पर्सन से मुझे देख रहे हैं, and no means next opportunity, no issue, ठीक है जी। सोए हुए को जगाया जा सकता है, बट जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता। ठीक है। और एक मेरा और एक सवाल था, सॉरी मैं पहले पूछने वाला था, मैं भूल गया, क्योंकि आपके जवाब इतने अच्छे आ रहे थे, मैं खुद भूल जाता हूँ। एनीवे, आपको जो जैसा पहला चेक वॉज 300 एंड समथिंग और ग्रेजुअली इंक्रीज, अभी तो आपका 6 लाख के ऊपर चेक है। हाँ जी। हाउ मच टाइम डिड यू टेक यू टू रीच 1 लाख, मतलब 300 रुपीज़ से 1 लाख बनाने को, मतलब कितना, 1 साल में, 3 महीने में, 1 साल में? 2019 में मेरा चेक 300 समथिंग था, एंड आई 2019? या 19 के अंदर 308 रुपीज़ का था, जनवरी मंथ के अंदर चेक। हाँ। एंड सेम अगर बात करो तो पूरे ईयर कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं आ पाई क्योंकि स्ट्रगल था, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट 2020 की भी जनवरी के अंदर मेरा 200-300 का ही चेक था। अच्छा, 2020 में? 2020 में भी इतने का ही चेक था, इवन आफ्टर 1 ईयर। ओके, ओह, या इवन so आफ्टर that is very interesting कि after 1 year also Same his checks didn't increase a lot, but he didn't lose hope, which is very important for you to understand. आफ्टर 1 year 5 months आई क्वालिफाइड एज अ सुपरवाइजर लेवल। Oh, ओके, एंड सुपरवाइजर से मैनेजर में जस्ट मुझे 3 मंथ्स लगे। मतलब क्या है कि जो 1.5 साल मैंने एफर्ट्स करता रहा, वो 1.5 साल बाद एक साथ ही दिखा, एंड मेरा मैनेजर लेवल इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड बना 244 सीसी पे, मतलब डबल से भी ऊपर पे मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट किया। देन मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल हिट किया एक ही मंथ में। देन कारप्लान लेवल 1 जस्ट इन 1 मंथ, लेवल 2, लेवल 3 जस्ट इन 1 wow. Kaplan level 3 is another 52,000 rupees per month, multiplied by 36 months. जस्ट It's 1 मंथ। extra income. So this is fantastic. I एक mean, ही साल के अंदर चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया, EMR क्वालिफाई किया। 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, आधे साल के अंदर बाकी के जो 6 मंथ्स बचे थे उसके अंदर सारा कुछ क्वालिफाई हो गया, सारा कुछ क्वालिफाई हो गया। Right. तो मतलब जो 1.5 साल नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ, वो एफर्ट्स जो थे उसका रिजल्ट एकदम से आया। मैं एक ही आपको एक लास्ट सवाल कर रहा हूँ। आप हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नॉट ओनली इन बॉम्बे, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया, उनको आपको क्या एडवाइस देंगे? मैं आपको 5 मिनट देता हूँ उनसे बात करने को, कि हाउ यू अचीवमेंट कैसा हुआ, आपको नेगेटिव लोग कैसे मिले, और किस तरीके से आपने वो जो यॉकर डाला उसको अपने 6 या सो थैंक यू सो मच सर फर्स्ट। सो हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपने पूरा सुना होगा, तो मेन थिंग इज़ कि विदाउट स्ट्रगल देयर इज़ नथिंग, एंड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म विज़न ये ना लेके चलो। मैं फॉरएवर को आया था करियर लेके, और करियर का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि जस्ट 1 साल करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कंपनी बदलेंगे। ओके, मैंने सोचा यार मानिक अभी तो 18 साल का, ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल की ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी क्या होगा, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, हद 25 हज़ार की नौकरी लग जाएगी, ठीक है जी। एंड 3 साल तो अगर फॉरएवर में दे, 3 साल अगर फॉरएवर में दे, एंड मेरे सीनियर दैट टाइम 22 ईयर्स की एज में थे। ओके, प्रदीप सर उनका नाम है, एंड ही वाज अर्निंग अराउंड 1.5 लाख, एंड उनके पास स्कॉडा रैपिड गाड़ी थी। मैंने कहा मानिक 18 साल का तू है,
22 साल की एज में भी जाके तेरे पास 1.5 लाख मंथली इनकम आ गई, बहुत है। एंड कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ पाने में जुट जाएगी। एंड वो जो चीज़ सोची थी, ठीक है, वो 19 साल की एज में ही सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज हो सकता है आपकी लाइफ में अंधेरा हो सकता है आज ना पूरा डार्क दिख रहा हो, पूरा मतलब रास्ते बंद हो रहे होंगे, बट कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला भी आता है, हर रात के बाद सुबह भी आता है। तो टेंशन मत लेना, एक ही चीज़ बोलूँगा, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। तो चलते रहना, कोई बात नहीं। टफ़ प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं आई, मेरे साथ भी आई। अगर आप मेरी मैंने वीडियो डाली हुई है फॉरएवर लिविंग का असली सच ऑन माय चैनल, उसके अंदर क्या है कि मैंने अपना पूरा मतलब मेरे घर वाले कैसे मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, घर वाले कैसे मुझे बोल रहे हैं, मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया। तो बताने का मतलब क्या है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, लगे रहो। इफ़ आई कैन गेट सक्सेसफुल एट द एज ऑफ जस्ट 20, तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी। इस एज में एज मैटर नहीं करती, आप लगे रहो। एंड ये ग्लोबली बहुत अल्टीमेट तरह के इवेंट्स मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, अदर कंपनी शायद हमें इस लेवल के इवेंट्स भी नहीं देती। Yeah, very good. I think it has been amazing, guys, to talk to Mr. Agrawal, and I'm sure that we are going to hear more from him. Not, I'm just imagining that you'll be one of the next Rofkip Yes, of not just for the world. So Yes. that type of achievement, because you know what the biggest part the youngsters have with them is time. They're just 20. They still have a full lifetime Yes, in sir. there, and they can do wonders. And sky is not the limit. So this is fantastic. Thanks a lot. Thank you, It was a pleasure meeting you. It was my dream to have that you will take my interview. It was my dream, and my dream came true, because when I was on my AS level, I used to see your videos, and that was also one source of inspiration for me. That so big personalities are there in this forever, in this business, and you are just 18. Keep on working, and thank you so much. I am thanking for you. No. I think if you hear my story when I started, what challenges I faced was amazing. Yes, sir. Because my full family was against me. That's a long story. Yes. Maybe some other day we'll have a word Yes, sir, sure. on this topic. So again, we'd like to thank Mr. Agrawal again, Thank you, sir. and all the best, guys. Rock it and forever rocks all over the world, guys. So see you all soon. All the best. A lot of love from both of us, and see you successful, and may you really achieve the dreams and everything that you have in your dream. The only thing is, when you're having a dream, don't sleep, be awake, so that those dreams can come true. Thank you. All the best.